ఇంకా నీ బాడీలో పెయిన్ ఉంది. మీ ఎవరికి రైట్ చెప్తారు? టెస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం కరెక్ట్ ఉందా లేకుండా నీ బాడీ ప్రకారం? బాడీ ప్రకారం కదా. ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లం ఉందా నీకే తెలుస్తాయింది అయింది కదా, నీకు ప్రాబ్లం ఉందా? ఆ, చాలా కేసులు. అందుకు నా దగ్గర వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆపరేషన్, బ్లడ్ టెస్ట్ కాదు, టెస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం నేను చేయను. నీ బాడీలో ఫేస్ చూసి, ముఖం చూసి, టంగ్ చూసి, కళ్ళు చూసి, ఆ ఇది చూసి తర్వాత నీ రిపోర్ట్ చూస్తాడు. అంటే నా మైండ్ ప్రకారం రిపోర్ట్ సరిగా ఉందా కాదా, రిపోర్ట్ సరిగా ఉందా లేకుండా సరిగా లేదు, నాకే మైండ్ ఉంది, ఆ మైండ్ ప్రకారం ఆయుర్వేదం ప్రకారం నేను పని చేస్తాను. ఆ ప్రకారం ఎలా ఏం ఔషధి ఇయ్యాల. అసలు పంచగవ్య ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మెడిసిన్, ఇట్ ఈస్ ఏ పంచగవ్య ఫుడ్ సప్లిమెంటరీ ఔషధి. పంచగవ్య ఫుడ్ సప్లిమెంటరీ ఔషధి, ఇట్ ఈస్ నాట్ మెడిసిన్. యూజ్ చేసిన తర్వాత ఎవరికి ప్రాబ్లం రాదు. సపోజ్ ఎవరు తాగినారా మెడిసిన్స్, మందు ఇది ఔషధి, ఏం ప్రాబ్లం రాదు. అందుకు ఇది ఔషధి, ఫుడ్ సప్లిమెంట్, భోజనం ప్రకారం. పంచగవ్య అంటే పంచగవ్య భోజనం ప్రకారం ఉంది. సపోజ్ మీకే గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉందా, మీరు 2 లీటర్ మజ్జిగ తాగితే ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతాయి? లేదు కదా. సో మజ్జిగ తాగితే అందరికి బాగుంది. మజ్జిగ ఎట్లా ఉంది అంటే किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो शरीर को मेंटेन रखने का काम मज्जिगा छाछ करता है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पंचगव्य थेरेपी. बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इट इज नॉट, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इट जो है कि ये ऐसा नहीं है. एलोपैथ के अनुसार वैसा नहीं है. एलोपैथ में बस जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दे दिया, 2 4 गोली 5 गोली खाइए ठीक हो जाएगा. बट बॉडी को मेंटेन करने का काम हमारा भोजन करता है. तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा था कि रोगों की पहचान. आपके बॉडी में जो है कि रोग, यहाँ से दिखा रहा हूँ, ठीक है आएगा सामने से. अब इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, पकड़िए. ఆ, వీడియోలో సరిగా రావట్లేదు, ఫోటో పంపిస్తాను. ఇది ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది, ఆ డయాగ్రామ్ తో ఫోటో పంపిస్తాను గ్రూప్ లో. ఆ, ముందే ఉంది కదా. ఆ, ఒక పీడిఎఫ్ ఈ ఫోటోకి నేను పంపిస్తాను గ్రూప్ లో, మీరు ఓపెన్ చేయండి చూడండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫోటో. అకార్డింగ్ టు రాజీవ్ దీక్షిత్ అండ్ the diagram preparing by my Guruji Niranjan Verma.
फर्स्ट में क्या है कि फेफड़ा फेफड़ा అంటే లంగ్ మీరు ఫోటో చూడండి फेफड़ा అంటే లంగ్ లంగ్ అండ్ బడి ఆంత అంటే బిగ్ బిగ్ ఇంటెస్టైన్ फर्स्ट में क्या है फेफड़ा लंग एंड बिग इंटेस्टाइन तो ये ये दोनों के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कैसे पहचानूंगा। हाँ तो ये प्रॉब्लम अगर छोटी आंत में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि रक्त चमड़ी स्किन में से ब्लडिंग आएगा ऑटोमेटिक इन योर हैंड या अदरवाइज इन योर लेग एनीबडी इन द इन योर बॉडी तो किसी का भी बॉडी में ये जो है वहां से रक्त आएगा रक्तम वाइटे होती है। तो वो अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बड़ी वीक इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है और वैसे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है श्वास में प्रॉब्लम यहाँ जिनको रक्त आता है यानी स्किन प्रॉब्लम किसी को भी स्किन प्रॉब्लम है तो मेन पर्पस उनका रीजन कहाँ है नॉट एक्सटर्नल ओनली स्किन प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि उनका वीक इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है उनको डाइजेस्ट सही से नहीं होता है మోషన్ సరిగా రాదు 2-3 రోజులు మోషన్ అవుతాయి తిని తర్వాత రోజుకి రాదు అంటే 24 అవర్లో 1 టైం ఖచ్చితంగా కంపల్సరీ మోషన్ రావాలా డ్యూటీకి పోవాలా అంటే రాదు వాళ్ళకి శ్వాసం ప్రాబ్లం లంగ్లో కొని వాకింగ్ పోయిన తర్వాత ఆస్మా లాగా అవుతుంది బట్ ఆస్మా లేదు ఆస్మా రియల్ గా ఆస్మా లేదు బట్ ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం లంగ్ లో ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఆక్సిజన్ సరిగా పోలేకుండా ఆస్మా లాగా అయింది రియల్ గా అది ఆస్మా లేక సెకండ్ నోజ్ సెకండ్ ఫస్ట్ లో ఇంకా నోజ్ ఉంది నోజ్ లో ఏముందా వాళ్ళకి జెంట్స్ వాళ్ళకి కానీ నోజ్ పెద్దది ఉంది ఇంకా సైడ్ లో పింపుల్స్ లాగా అవుతాయి అంటే क्या बोले तो उसमें पिंपल्स जो होता है ना वो बाहर जेंट्स को किसी को बाहर आता है पिंपल्स बाहर से दिखाई देता है वो और यहाँ स्किन स्किन जो है स्किन में भी थोड़ा थोड़ा कहाँ कहाँ कहीं कहीं क्रैक जैसा दिखाई देगा स्किन जो है स्मूथ नहीं चिकना नहीं रफ होता है उनका स्किन जो होता है ऑयली नहीं ड्राई होता है ड्राई स्किन और टंग कलर वाइटनेस అంటే ఎంత మీరు టంగ్ క్లీనర్ చేయండి కొనిసేపు తర్వాత మళ్ళీ మీకు అట్లే కనపడుతుంది టంగ్ లో టంగ్ క్లీనర్ చేసే తర్వాత కూడా అది పూర్తిగా నోర్మల్ లాగా పిల్లలు टंग लागा कनपड़त नहीं दिखाई देता है तो वो क्या बोलते हैं मैल बैठा हुआ है जीप पर मैल बैठा हुआ मैल नहीं है कितना भी क्लीन कर लेंगे टंग क्लीनर से वो क्लीन नहीं होगा यानी उनका प्रॉब्लम जो है वो जो हम लोग जो देखते हैं तो ये जो है इनका बड़ी आंतरिक इंटेस्टाइन में उनको प्रॉब्लम मेरे फादर का हाँ तो ये उनका जो प्रॉब्लम है बड़ी आंत में है और ये हम लोग जीभ से कलर पहचानते हैं तो जो औषधि हम लोग देते हैं उनको प्रॉब्लम के खाने के लिए बड़ी आंत को ठीक करने के लिए तो रोग ज्यादा हुआ है तो तुरंत तो स्किन प्रॉब्लम ठीक होगा नहीं जब तक ये बड़ी आंत ठीक नहीं होगी तब तक ये स्किन प्रॉब्लम ठीक होने वाला नहीं है और वैसे लोग सैड उदास रहते हैं अकेला में बैठने के बाद में उदास रहते हैं चिंतित सोचते रहते हैं खोए रहते हैं क्या करना नहीं करना हाँ टेंशन में उदास में सैडनेस में और अकेला है या कोई बात हो गया तो जल्दी से रोने भी लगेगी
सिसकने लगेंगे। क्राइंग। और उनको म्यूकस, कुछ लोगों को तो म्यूकस भी होता है, यानी सर्दी होता है, कोल्ड, कोल्ड आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी प्रॉब्लम क्या है? हमारे शरीर में टोटल 12 ऑर्गन्स होते हैं। ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, तो ये 12 ऑर्गन का हम लोग को पहचान करना है कि कौन सी ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से। इनका ये फर्स्ट जो है फेफड़ा, लंग। लंग में अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, जैसे लंग में प्रॉब्लम अगर क्या आता है जनरली अगर है तो खांसी, टीबी, दमा, अस्थमा। टीबी होता है। अब वैसी स्थिति में जो महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में टीबी के केसेस ज्यादा मिल रहा है, बहुत ज्यादा। आस्थमा का पेशेंट, आस्थमा बहुत ज्यादा। अब उनका इलाज क्या है हमारा पंचगव्य में? तो क्या सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए उनको इनहेलर दिया जाता है, पफ मारने के लिए इनहेलर। 2 पफ ले लीजिए, रिलैक्स हो जाएगा। तो कितना दिन लेंगे इनहेलर? इनहेलर लेने के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि कारण क्या है कि आप टाइम पर नहीं खाना खाते। ये सब रोग होने का कारण टाइमली खाना नहीं खाते। अगर आप 7 to 9 के बीच में, मॉर्निंग 7 to 9 के बीच में अगर खाना नहीं खाते हैं, लेट से खाते हैं, 10 o'clock 11 o'clock पर डे, टिफिन भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नाश्ता नहीं कर रहे हैं, टिफिन नहीं कर रहे हैं, खाना भोजन नहीं कर रहे हैं 7 to 9, the time it is very very important in your body. Without medicines, how you can save without medicines? तो इसके लिए आपको टाइमली मेंटेन रखना होगा भोजन का। जो आप नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, 7 to 9 के बीच में आप खा लें। अगर वो खा लेते हैं तब जा करके आपको जो है कि परेशानियां नहीं आएगी, नहीं तो परेशानियां आना ही आएगी। और दूसरा, सुबह सुबह उठ करके पेस्ट करना, दंत मंजन नहीं, हमारे द्वारा बनाया हुआ, पंचगव्य द्वारा बनाया हुआ ब्लैक टूथ मंजन, मंजन करना। तो वो टूथ मंजन से अगर आप यूज करते हैं तो अपने दांतों को बचा सकते हैं बीमार होने से, दांतों के डॉक्टर से जाने से बच सकते हैं। और उसके बाद में जो है टाइमली खाना। अगर फेफड़ा में प्रॉब्लम है, लंग प्रॉब्लम है, टीबी और के आसमा होता, टीबी होता, तो वो टाइम में जो इनहेलर रहते हैं, इनहेलर नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या करना है? हमारा पंचगव्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में, एक पाउडर के रूप में है भस्म। इट इज कॉल्ड गोमय भस्म। ये गोमय भस्म, गोमय भस्म, उसको पानी में डालना, उसमें ठोस ऑक्सीजन है। ये फेफड़ा का जो ही प्रॉब्लम है क्या है, उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता। ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम होने के चलते ये सांस की प्रॉब्लम आती है, लंग प्रॉब्लम आती है। तो अगर गोमय भस्म को पानी में मिक्स करके उस पानी को, ऊपर का साफ पानी को अगर पीते हैं तो इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से भरपूर रहेगा बॉडी में, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। टीबी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, आस्थमा पेशेंट, या किसी को भी लग रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो, तो हमारे पास पंचगव्य के द्वारा ठोस ऑक्सीजन पाउडर बोला जाता है उसको, जिसको गोमे भाग, ड्राई ऑक्सीजन पाउडर, उसको पानी में मिलाए तो वो, उसका ऑक्सीजन जो है पानी में घुलनशील हो जाता है, और घुल कर कर करके वो फिर हमारे शरीर में पानी के माध्यम से जाता है, तो पूरी तरह से ब्लड में होकर के ऑक्सीजन चला जाता है हमारे लंग में, फेफड़ा में, हार्ट में। तो ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है और वो समस्या जो है कि दूर हो जाती है।
इसके पहले हमारे द्वारा एक दांतों को सुरक्षा के लिए ब्लैक टूथ मंजन, पंचगव्य गोमय टूथ मंजन। हाँ, ये ब्लैक होती है, काला, देखने में प्योर काला, लेकिन दांत काला नहीं होता, ऐसे आपको दिखाई देगा। ये देखिए काला दिखाई दे रहा है। तो ये जो काला है, ये दांतों को काला नहीं नुकसान करता है, लेकिन आपके दांत, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं वो 4 टाइप्स का सॉल्ट है इसके अंदर, 4 टाइप्स का सॉल्ट है। उसके अलावा पप्पू, टर्मरिक पाउडर, भीमसेनी कर्पूरम, कच्चा कर्पूरम जिसको बोलते हैं। हाँ, उसके अलावा आपका जो है वामू बोलते हैं, वामू सत, अजवाइन सत, पिपरमिंट जिसको पुदीना सत हिंदी में बोला जाता है। फिर नीम का तेल, नीम को क्या बोलते थे तुम में? वेपा आकू का बना हुआ नूनी ऑयल वो रहता है। फिर मस्टर्ड ऑयल रहता है। हाँ, उसके अलावा फटकर, फटकर बोलते फिटकरी, एल एम इंग्लिश में ALUM, जो आफ्टर शेव लोशन दाढ़ी बनाने के काम आता है। उसका भस्म उसके अंदर, वो भस्म इसमें मिला हुआ रहता है। फिर इसमें नई मज्जिगा, ऑलरेडी गौ में कंडा है, कंडा से बना हुआ। तो इस तरह से मिला के इसके अंदर का जो चीजें हैं वो बनाई जा रहती है, और बहुत ही पावरफुल, तब जाके दांतों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। बहुत ज्यादा यहाँ से सेलिंग होता है, तो इसको लोग ले जाते हैं, एक बार जो यूज करते हैं इसका मतलब कि बहुत अच्छा टेस्ट होने के चलते कंटिन्यू यूज करते हैं। और दांतों का दर्द, सबसे बड़ी बात, कितना भी दांतों में दर्द है, टीथ पेन है, एक बार लगा करके वहां 5-10 मिनट छोड़ दें दांतों में, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 to 10 मिनट में तो पंडलू दुखी टीथ पेन ठीक हो जाता है। और कंटिन्यू यूज करें तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वो है। तो दूसरा, सेकंड पर आता हूं मैं। इसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सेकंड में लोगों को, डायबिटीज, डायबिटीज प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम। शुगर प्रॉब्लम क्यों आ रहा है इन? हम्म, हाँ, तो ये सबसे बड़ा कारण, डायबिटीज का मेन कारण मालूम आपको, टाइम मेंटेन। ये 7 to 9 भोजन का जो टाइम है, वो टाइम में खाना नहीं खाए तो ये इंसुलिन हमारा बॉडी में नहीं बन पाता है सही ढंग से। बॉडी में इंसुलिन अगर अपने आप से नहीं बना, खाने में से अगर इंसुलिन नहीं लेगा, तो क्या होगा? टाइम, वो भोजन फिर बाहर से टैबलेट के द्वारा लेना पड़ता है। तो आप ऑर्गेनिक भोजन करते हैं या जो भोजन कर रहे हैं, अगर 7 to 9 के बीच में भोजन कर लिए, तो वो खाना में से जो है कि इंसुलिन निकलता है, भोजन पचने के बाद में, डाइजेस्ट होने के बाद में जो इंसुलिन निकलेगा, वो आपको बॉडी को मेंटेन रखेगा। क्योंकि वो हर एक आदमी के शरीर के अंदर में इंसुलिन बनता है, और वो अगर नहीं बना तो शरीर में वीकनेस आएगा, कमजोरी। तो इसी स्थिति में आपको बाहर से इंसुलिन लेने पड़ती है, या उस तरह की जो है टैबलेट, डायबिटीज की टैबलेट, शुगर की टैबलेट लेकर के उसको मेंटेन किया जाता है। तो उसको, इसे ठीक करने के लिए, प्लीहा अग्नाशय, इंसुलिन को ठीक करने के लिए हमें जो है कि अमाशय, जिसको पेट कर्पूर, कर्पूर में भी प्रॉब्लम है, यानी टाइमली उनको भोजन नहीं मिलता। अगर ये टाइम से भोजन उनको मिल गया तो डायबिटीज प्रॉब्लम नहीं है।
यानी इस टाइम में 7 to 9 के जो है ये टाइम में अगर खाना खा ली तो 9 to 11 के बीच में उनको इंसुलिन बनने लगता। अगर वो 9 to 11 के बीच में खाना खाते हैं, 11 o'clock को खाना खाते हैं, टिफिन खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो टाइम तो उनको पचने में टाइम लगेगा। तो वो जो इंसुलिन बनता है वो बन नहीं पाता है टाइमली। तो वैसी स्थिति में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है बॉडी को, और उनको टैबलेट लेने पड़ जाते हैं। तो ऐसी चीज को तो लेने पड़ते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है, हम कैसे पहचानेंगे कि उनको डायबिटीज होने वाली है? विदाउट ब्लड टेस्ट हाउ कैन यू टेस्ट इन योर बॉडी इन द फ्यूचर कमिंग डायबिटीज? डायबिटीज होने वाली है, कैसे पहचाने? सिम्टम्स नंबर 1। फर्स्ट सिम्टम्स, सार सार के पास के यूरिन के पोल, यूरिन पेशाब करने के लिए बार बार जाने पड़ते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको क्या होगा, ये लोड पड़ेगा यूरिन पर। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ देख लीजिए, टंग का कलर येलो है। जो टंग का कलर है जो येलो है, यानी आपके टंग के ऊपर अगर उसमें येलो कलर, येलोइश पीलापन आ रहा हो और उस पे दाना दाना निकल रहा हो, तो इसका मतलब है कि आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, रात में देर से सो रहे हैं। यानी 9-10 o'clock, 10 o'clock नाइट में उसके बाद तक अगर आप जग रहे हैं पर डे, तो हीट बढ़ेगा। हीट बढ़ेगा तो ये दाना दाना डॉट 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 ये निकल रहा है। तो ये सुबह में टाइमली खाना, रात में भी टाइमली खा के सो जाना, दैनिक दिनचर्या आपका खराब है। वो अगर मेंटेन नहीं होगा तो कितना भी मेडिसिन खा लें, आयुर्वेदिक खा लें, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आपको रिलैक्स मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो ये पहचान है कि येलो कलर हो गया तो आपको डायबिटीज होने वाली है या हो चुका है। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड टेस्ट में आपको नॉर्मल आएगा, टेस्ट रिपोर्ट में नॉर्मल आएगा, लेकिन हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में बिफोर डायबिटीज टेस्ट में आने के पहले अगर टंग देख के हम लोग पकड़ लेते हैं कि उनको आने वाली, या तो दूसरा चीज, उनकी आंखों के नीचे स्वेलिंग आती है, सूजन, ओठ, ओठ उनका मोटा होने लगता है, नीचे वाली जो ओठ है ना, लिप्स, लिप्स उनका मोटा होने लगता है, चिड़चिड़ा, रुखरा, फटा हुआ, ड्राइनेस, मुंह, मुंह खोलने के बाद में उनका जो टंग है ना, ऊपर की ओर हो जाता है, ऐसे लंबा नहीं रहेगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर चला जाता है। और तो और उन लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, जहाँ बांह होता है, बांह, यहाँ की नसें मोटी होने लगती है, यहाँ पेन होता है, दर्द होने लगते हैं, हाथ को फ्री मूवमेंट नहीं कर पाते, दोनों तरफ यहाँ नर्व जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, मोटे होने लगते हैं। और वैसा ही जांग में, पैरों में, पैर के नस भी मोटे होने लगते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है, उनके जो नर्व प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाते हैं, चलना फिरना भी दिक्कत होने लगता है, उठना बैठना दिक्कत होता है। और वो कोई चीज, किसी चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, हंसते हुए रहेंगे, गुनगुनाते हुए रहेंगे, लेकिन कभी कभी उनके शरीर पर लसिका ग्रंथि निकला हुआ रहता है, यानी कि कहीं ना कहीं स्किन पर से अ, दांत, खुजली, दिनाए, एक्जिमा जैसा थोड़ा थोड़ा होने लगता है, वहां पर पानी निकलता है। तो ये सब कारण क्या है,
पहचानने का, यानी कि आपको आमाशय, आप टाइमली भोजन नहीं कर रहे हैं, टाइमली भोजन नहीं करने से वो डाइजेस्ट सही से नहीं हो रहा है, तो गैस बना रहा है, गैस बना रहा है, तो यहाँ पर इंसुलिन प्रॉब्लम आ रही है और आपको डायबिटीज हो रही है। तो डायबिटीज को ठीक करना है, तो मेंटेन करना है, यानी कि यहाँ पर आपको तिक्त वस्तुएं, तिक्त जो तीतापन होती है, जिसमें मीठापन नहीं, स्वीटनेस ज्यादा ना हो, या ना के बराबर, जिसमें तीता तिक्त वस्तुएं जो खाए उसको, जैसे वहां पापू, काकरकाय, आ, ब्लैक जामुन होता है जो, ब्लैकबेरी, वो जामुन, इस तरह के खंटा फल, खंटे फल का आप सेवन ज्यादा करेंगे, तब जाके उसको मेंटेन करें। और हमारे पंचगव्य में गौमूत्र में बना हुआ जो है, जो कई तरह के जड़ी बूटियों जो कसायम है, उसका अर्क निकाल कर करके उसको मिला कर करके तैयार किया हुआ है डायबिटीज में, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। नीचे चलते हैं हार्ट थ्री में, हार्ट प्रॉब्लम, हृदय। तो हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे? उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको भी सांस लेने में दिक्कत होती है। और उनको थोड़ा सा वॉकिंग चलेंगे तो हाँ, आ जाएगा, आयुष्मान जैसा आ जाएगा, हाँफने लगे। रात में सही ढंग से सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं आती है, देर नाइट सोते हैं, निद्रा रात्रि की, वैसे लोगों को, उनको अगर टंग देखा जाए, जीभ, तो जीभ में नीचे वाले पोर्शन जहाँ पर है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे वाले पोर्शन में क्रेक रहेगा, थोड़ी सी क्रेक रहेगा, हल्का हल्का लगेगा कि ब्लेड से कट किया हुआ। तो वो चिन्ह से अगर उस तरह के कट आ रहा है, तो यानी आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या होने वाली है। मतलब क्या है कि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और वो जो गंदगी है खून में मिल गया, और कोलेस्ट्रॉल बन गया। खून में जो गंदगी होती है उसी को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। तो ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकेगी, तो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट पेन, हाँ, ये सब होने लगते हैं। तो अगर उस टाइमली अगर मेंटेन करते हैं भोजन को, टाइम टू टाइम खाना खा लेते हैं, यानी सुबह में 7 to 9 o'clock खा लेना है, दोपहर में खा लेते हैं तो दोपहर में हल्का भोजन करें, और इवनिंग, इवनिंग में 7 o'clock तक, 5 to 7, अगर आप खाना खा लेते हैं तो सोने के पहले आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्ट हो गया तो आपको गैस की दवाई कभी, जो आप लोग हमेशा 99% लोग गैस की दवाई खाते रहते हैं ना, ये गैस से परेशान है कि मेरे को गैस प्रॉब्लम है, गैस प्रॉब्लम है, पाइल्स है, मूलर और क्यों? लेट नाइट भोजन करने के चलते, देर से भोजन करने के चलते, क्योंकि तुरंत खाना खाएं सो गए, डाइजेस्ट होता नहीं। खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, अंदर ही अंदर सड़ेगा, और सड़ेगा तो गंध मारेगा, गंध मारेगा तो गैस के रूप में बना करके पूरे ब्लड में मिलेगा, और ब्लड में जो गंदगी जाएगी उससे आपको हार्ट में, किडनी में, जो भी जहाँ प्रॉब्लम आएगा, वहां जा करके वो आपको नुकसान करना कर देगा, आपकी प्रॉब्लम। अच्छा, मुख, माउथ जो है कि पूरी तरह से ओपन नहीं होगा, और जनरली किसी किसी को जो है कि रेड कलर का, पूरा रेड कलर का टंग हो जाता है, एकदम लगेगा कि ब्लड है, टंग का कलर पूरी तरह से ब्लड जैसा दिखाई देने लगता है। तो वैसी स्थिति में इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, वो चाहे टेस्ट कराएं, नहीं कराएं, हाँ, कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे, उनको मालूम चल जाएगा कि उनके शरीर में गंदगी बढ़ रही है,
तो बीपी हाई होगा। बीपी हाई होगा, हार्ट का प्रॉब्लम है। लेकिन जो हार्ट का पेशेंट होते हैं वो हंसमुख स्वभाव के होते हैं, लाफिंग, हमेशा हंसमुख, हंसते हुए रहेंगे, सैड नहीं देखेंगे कभी उनको, हंसते हुए रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन उनको पसीना भी आता है बहुत ज्यादा। चमोटा, तेलुगु लो चमोटा, 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 चमोटा उनको आता है, ज्यादा चमोटा आता है। हार्ट का अगर प्रॉब्लम आने वाला है तो उनको चमोटा, पसीना जो है, चमोटा खा दो, चमोटा, 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 हाँ। हाँ, वो सर पे ज्यादा पसीना आना, ठंडे के दिनों में भी पसीना आना, कोल्ड सीजन में भी, विंटर सीजन में भी पसीना आना। समर सीजन में तो आता ही है, लेकिन कोल्ड सीजन, विंटर सीजन में भी उनको चमोटा ज्यादा आता है। तो इसका मतलब है कि उनके शरीर में धीरे धीरे हार्ट का प्रॉब्लम आने वाला है। लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम आने के पहले क्या होगा? సపోజ్ మీకు బైక్ ఉంది, బైక్ లో ఇంజన్ సీజ్ అయింది, సీజ్ వచ్చేక ముందు ఏం అవుతాయి? ఇంజన్ హీట్, ఇంజన్ హీట్ అయిపోతుంది. అందుకే హృదయాభ్రన్, ఫోర్త్ మే హృదయాభ్రన్. హృదయాభ్రన్ అంటే ఏముందా? ఒక ఏ- సంచి ఉంది, ఆ సంచిలో ఆయిల్ ఉందా? ఆయిల్ కిందే మసీన్ ఉంది. ఈ సంచి ఉంది, సంచిలో ఆయిల్ ఉంది, ఆయిల్ తర్వాత మసీన్, ఇంజన్. సో ఫస్ట్ ఏం హీట్ అయిపోతాయి? ఆయిల్. ఆయిల్ హీట్ అయింది తర్వాత నీ ఇంజన్ హీట్ అయిపోతుంది. ఆయిల్ हीट लेकुंडा इंजन हीट रादु. तो ये हृदयाभरण में क्या है कि आपका अगर बीपी हाई हो रहा है, हाई बीपी, यानी कि आपको हार्ट में फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाला है। तो आप अगर हार्ट को कंट्रोल कर लिए, ठीक कर लिए, यानी बीपी को ठीक कर लिए, तो फ्यूचर में आने वाला जो हार्ट प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो उसकी पहचान क्या है कि हीट हो रहा है, हृदयाभरण जो है कि वो ठीक, प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको जीभ के ऊपर एक टंग है ना, रेड कलर का डॉट 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 उभरा हुआ रहेगा। సపోజ్ కారం పొడి ఎక్కువ తిన్న తర్వాత చాలా మంట మంట వస్తుంది మామూలుగా. ఎందుకు? అలా హీట్, బాడీలో హీట్ ఎక్కువ అయింది. హీట్ అయింది అయింది ఎందుకు అంటే डॉट 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 వచ్చింది, लाल दाना दाना निकल जाता है रेड कलर का, और खाने में तीता ज्यादा लगता है, मंटा मंटा ज्यादा लगता है। तो वो इसी स्थिति में आप टोटली हीट पदार्थ, जो भी हीट, ऑयली फूड, मसालेदार फूड, కారం ఎక్కువ తినకూడదు. అప్పుడు ఏం చేయాలా? ఫుల్ ఫుల్ భోజనం చేయాలా. అంటే మజ్జిగ ఎక్కువ తాగుతాం, మజ్జిగ ఎక్కువ తాగితే బాడీ కూల్ అయిపోతుంది. బాడీ కూల్ అయితే ఇంకే హార్ట్ के प्रॉब्लम सोल्व అయిపోతుంది, ప్రాబ్లం ఎక్కువ రాదు. ఉమ్, ఇలాగా. సో అన్ని నీ భోజనం ప్రకారం నీకే రోగం వస్తుంది భోజనం నుంచి. భోజనం ఎట్లా తింటున్నారా, ఏ రకాలు తింటున్నారా, ఎన్ని घंटा के తింటున్నారా, कितना बजे को खा रहा है, कब खा रहा है, क्या खा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका रोग। आपको भोजन की जानकारी नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं तो रोग आपको आएगा। तो केवल मेडिसिन खा करके परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं आप। चाहे एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, इंग्लिश हो, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स मिलेगा, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि भोजन जरूरी है। और भोजन जरूरी है तो कौन सा भोजन आपको चाहिए और कितना बजे खाना ये भी जरूरी है। अगर किसी दिन लेट हुआ तो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यू अगर वैसा ही कर रहा है तब तो गड़बड़ होगा ही। बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, सारा चेक कराएंगे, उसके बाद में होगा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो क्या ऑपरेशन से बचना चाहते हैं?
तो आयुर्वेद का सिद्धांत को फॉलो करना होगा, बागवट के रूल्स को फॉलो करना होगा, राजीव दीक्षित के बताए हुए रूल्स को फॉलो करना होगा। समय पर खाना खाना जरूरी है। और पंचगव्य का अगर आप सहारा लेते हैं, पंचगव्य और से चिकित्सा कराते हैं, तो बिना ऑपरेशन के ठीक होता है। कई लोगों को ठीक भी हुआ है, लगभग लोगों को सबको हो जाता है जो पंचमी को दिन ले लेते हैं, तो उनको ठीक हो जाती है। इस तरह से। नेक्स्ट 5, किडनी एंड यूरिनरी ब्लाडर। किडनी एंड यूरिनरी ब्लाडर, ये दोनों में अगर प्रॉब्लम है तो कैसे पता चलेगा? हाउ कैन यू सॉल्व योर प्रॉब्लम? हाउ कैन यू चेक योर प्रॉब्लम इन द किडनी एंड यूरिनरी ब्लाडर? तो इसमें जो है कि अगर किसी को भी यूरिनरी ब्लाडर और किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका ये जो फिंगर है ना, नेल, लेग नेल या हैंड नेल, ये रफ हो जाए, इसमें क्रैक आए, जल्दी जल्दी बढ़ेगा नहीं। इसका जो ग्रोथ है ना, वीकली 1 टाइम जो ब्लेड से कट कर देते हैं, वो कट नहीं होगा, बढ़ेगा ही नहीं। क्या चीज? हेलो। हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है? वीडियो राउट ले रहा। अच्छा। ये सपोज ये फिंगर उल्टी करा, ये फिंगर, ये नेल, 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 कोई भी, टोटल टोटल फिंगर, टोटल फिंगर, काल के कानी चेत के, चाहिए సరిగ్గా లైటింగ్ లేదు, లైటింగ్ రాదు, వైట్నింగ్ రాదు, క్రేక్ క్రేక్ క్రేక్, ఫింగర్ లో క్రేక్ అవుతాయి. బ్లేడ్ లో మీరు నేల్ కటింగ్ కటర్ నుంచి కట్ చేస్తున్నారు కదా, ఇది సరిగా రాదు, తొందరకి పెరగదు, వారం వారంలో కటింగ్ అవసరం లేదు, యా సరిగా లేదు అప్పుడు ఇది స్మూత్ రాదు, లైటింగ్ పోతాయి. उसको राइट, इसमें जिसमें बात करी, तो वो दूसरा गड़बड़ है ना? अब बात करिए ना हमसे जरा। हाँ हेलो। हाँ नेल्स, नेल्स క్రాక్ అవుతుంది, సరిగా ఆ స్మూతింగ్ రాదు, పెరగదు. ఈ నేల్స్ కి సపోజ్ నా నేల్స్ కి చాలా లైటింగ్ ఉంది నేల్స్ లో, మీ నేల్స్ సరిగా లైటింగ్ రాదు, అంటే కిడ్నీలో ప్రాబ్లం ఉందా, కానీ యూరినరీ బ్లాడర్ లో ప్రాబ్లం ఉందా, మీ యూరినరీ యూరిన్ సార్కే పోవాలా, ఆ, అట్లా ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇంకా కాన్, ఇయర్, చాలా మందికి ఇయర్ ఉంది కదా, చిన్నగా అయిపోతుంది, చిన్నగా అయిపోతే ఇంకా సరిగా లేదు చూసేది, అంటే బ్యాండ్, బ్యాండ్ అయిపోతుంది, సరిగా రాదు. इनका ई, ये बोलते ना केहुनी, ये ये जो कलर है, ये कलर दिख रहा, इरा ब्लैक అయిపోతుంది, ఇక్కడికి బ్లాక్, ఈ లాగా ఈ సేమ్ కలర్ లాగా రాదు, ఉండదు. సేమ్ కలర్ ఉంది, మంచిదా, ఈడ కలర్ డీప్ ఎక్కువ అయిందా, అంటే నీకే యూరిన్ లో కానీ కిడ్నీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా, అప్పుడు సాల్వ్ చేయాలి. మిగతా అలాగా మందికి భయము ఎక్కువ, భయము ఎక్కువ అవుతుంది.
ఇంకా కోపం కూడా ఎక్కువ అవుతాయి మనకి. కిడ్నీలో ప్రాబ్లం ఉందా కానీ యూరినరీ బ్లాడర్లో ప్రాబ్లం ఉంది, వాళ్ళకి కోపం ఎక్కువ, తొందరగా కోపం అవుతుంది. ఇంకా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. సపోజ్ రాత్రి పడుకున్నారా కదా, పిల్లో ఉంది, పిల్లో కవర్ పడుకున్న తర్వాత రాత్రికి ఇక్కడ నుంచి वाटर, लार, हिंदी में लार बोलते हैं, लार निकलता। हाँ, ये सोने के बाद में लार निकलता है, तकिया आपका पिल्लो जो है भीग जाता है। तो अगर वैसा तकिया से आ रहा है, भीग रहा है सोने के बाद में, नाइट में, यानी आपको प्रॉब्लम जो है ये किडनी में या तो मूत्र थैली में प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर ना करें। वो एलोपैथ के आधार पर उसका कोई दवाई नहीं, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसका इलाज है। पहले ही अगर आयुर्वेद से संपर्क करेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आगे फ्यूचर में आने वाली जो ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे यूरिन में, तो यूरिन से क्या होता है, हाँ यूरिन का फिर वहां पर ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। और किडनी का ज्यादा होगा, किडनी खराब होगा तो किडनी में डायलिसिस चालू हो जाते हैं। प्रोस्टेज प्रॉब्लम, मूत्र थैली में प्रॉब्लम అంటే ప్రోస్టేజ్, లేడీస్ కి కానీ జెంట్స్ కి ప్రోస్టేజ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది। ప్రోస్టేజ్ ప్రాబ్లం అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, యూరిన్ సరిగా రాదు, డ్రాప్ వస్తాయి। గంట గంట సార్కే మీరు యూరిన్ కి పోవాలా, చాలా టైం పడతాయి యూరిన్ కి పోయే టైంలో, ఇంకా సరిగా రాదు। ఒకసారి యూరిన్ నుంచి పాస్ నుంచి పోయి వచ్చినామా కొన్నిసేపు తర్వాత మళ్ళా పోయేకి ఇష్టం అవుతుంది సార్కి, అంటే మీకే ప్రాబ్లం ఉందా యూరినరీ బ్లాడర్ లో, అది సో ఆయుర్వేదంలో పంచగవ్యలో ఆ సమస్య సమాధానం ఉంది, అది యూజ్ చేస్తే వాడితే బాగా అయిపోతుంది। మిగతా लास्ट के 6 यकृत एंड पित्ताशय। यकृत అంటే लीवर और पित्ताशय అంటే गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर, पित्ताशय అంటే गॉल ब्लाडर। तो कर्सर जा रहा है, जा रहा है। हाँ, అంటే యకృత్, లివర్ అండ్ పిత్తాశయ అంటే గోల్ బ్లాడర్। ఈ రెండులో ప్రాబ్లం ఉంది तो బయట నుంచి ఎట్లా తెలుస్తుంది। ఈ మాస్ పేశీ, ఈ పేశీ है ना, మసల్స్, మసల్స్ క్రేక్ అయిపోతాయి ఎప్పుడు ఎప్పుడు, పెయిన్స్, నొప్పి, ఇలా చాలా హార్డ్ అయిపోతాయి మసల్స్, నొప్పి అవుతాయి మసల్స్ ఉంటే, ఇక్కడ మసల్స్ చాలా హార్డ్ అయిపోతాయి, మీరు సోప్ రాదు ఎప్పుడు, ఇంకా నొప్పి అవుతుంది మసల్స్। ఇంకా ఐ కలర్ చూడండి, వైట్ బ్లాక్ తర్వాత వైట్ ఉంది కదా, వైట్ లో ఇది చాలా వైట్ అయిపోతుంది, పిల్లల లాగా, పిల్లలకి వైట్ ఉంది అలాగా చాలా వైట్। ఆ వైట్नेस प्लेस लो ब्लड वेसल्स, आंखों के अंदर वजले जो होते हैं उस पर रक्त वाहिनियां, रक्त धाराएं जो सिराएं होती है वो नहीं दिखाई देती है, पूरी तरह से वाइट दिखाई देती है। तो इसको बोलते हैं వైట్ పసుపు రోగం। రెండు రకాలు ఉంది తెలుగులో, ఆయుర్వేదంలో జనరల్ గా, ఒకటి పసుపు కలర్ వాళ్ళ రోగం, ఇంకా తెల్ల పసుపు, व्हाइट व्हाइट पशु रोग, यानी जो होता है हिंदी में अगर बोला जाए तो पीलिया, एक येलो कलर वाला पीलिया, एक उजला कलर वाला पीलिया, दो तरह के रोग। तो आंखों का पूरी तरह से उजला होना, हाँ तो ये अच्छा पर मुझे सब लड़कियों का भला कर करते हैं। तो भैया रखे वाला फोमो वाला नहीं, उस पे नहीं। तो उसको से वो ज्यादा व्हाइटनेस रहने से वो आपका प्रॉब्लम कहाँ है, यानी कि आपका लीवर में प्रॉब्लम है, यकृत। उसके बाद नाक, नेल,
नेल में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। वो वो उसका भी कलर जो है येलो पर थोड़ा सा आता है, और रेड कलर का हल्का आता है। लेकिन सबसे ज्यादा पहचान आपको आएगा टंग से। टंग का कलर जो होगा वो आपको ग्रीन कलर का, पच्ची कलर, ग्रीन कलर अगर आ गया, टंग के ऊपर ग्रीन कलर आ गया, तो इसका मतलब है कि आपको लीवर में प्रॉब्लम आ गई है। और दूसरा, టంగ్ చాలా లావుగా అయిపోతుంది, లివర్ లో ప్రాబ్లం ఉంది, లివర్ స్వెల్లింగ్ అయింది, లివర్ సైజ్ పెరిగింది. ఆ లివర్ సైజ్ అల్ట్రాసౌండ్ లో ఆ స్కానింగ్ లో నీకే లివర్ కి సైజ్ పెరిగిపోతుంది. అంటే ఎట్లా తెలుస్తాయి? నీ టంగ్ ఉందా కదా, లావ్ లావుగా అయిపోతుంది, सन्ना रात, पतला नहीं था, पास नहीं रहता, पतला नहीं रहता, मोटा हो जाता। तो लीवर का साइज बड़ा हो, लीवर का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा? वो कब होगा? आपका पीत का थैली, गॉल ब्लाडर, वो एक्सचेंज करता है, वो भी बढ़ेगा। उसमें डॉट डॉट आने लगेंगे, दाना दाना आने लगेगा, उसमें स्टोन भी आता है। वही जो बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, तो गॉल ब्लाडर जो हीट कर करके उसका जो बढ़ेगा, उसका एक्सटेंशन होगा, उसका साइज अच्छा नहीं होगा, तो वो तो बड़ा होगा, तो आपका लीवर का भी साइज बड़ा होगा, और वो दिखाई देता है। अगर गॉल स्टोन है या किडनी स्टोन है, तो ग्रीन कलर की धारियां आती है, टंग के ऊपर ग्रीन कलर का लाइनिंग आना, टंग के ऊपर ग्रीन कलर का लाइनिंग आना। तो अगर लाइनिंग आ रहा, यानी कि आपको किडनी में स्टोन है, या तो फिर गॉल ब्लाडर में स्टोन है। और टंग अगर मोटा हो गया, तो इसी स्थिति में लीवर का साइज जो है बड़ा हो जाता है। तो बिना टेस्ट के, बिना अल्ट्रासाउंड के हम लोग इस तरह से पकड़ करके उसके इलाज करते हैं। और उस आदमी को जिसका लीवर का साइज बड़ा हो गया, तो गुस्सा ज्यादा आता है, that types of persons will गुस्सा, एंग्री एंग्री ज्यादा होता, कोपम ఎక్కువ అవుతుంది, ఆ వాళ్ళ మందికి కోపం ఎక్కువ. याद ना ये और चप्पिनारा तोंदर के रिएक्शन रिएक्शन అయితే అంటే डांटना शुरू कर देता है కోపం అయితే తర్వాత. కోపగించుకోవడం, ఒకరి మీద నిందలు వేయడం. तो वो ऐसा होने लगता है, और उनको आंखों से आंसू भी चलता है ज्यादा। कुछ रोगियों को आंखों से कंटिन्यू आंख से आंसू आने लगते हैं, आते रहते हैं, पहुंचते रहते हैं, जैसे कर्चिक लेके उनको पहुंचते रहते हैं, हमेशा ये उंगली आंखों में लगा रहता है, आंखों से पानी आना कंटिन्यू, मतलब कि आते रहता है। आप आई टेस्ट करा के थक गए हैं, ऑपरेशन, बहुत सारे लोग तो ऑपरेशन करा लेते हैं, ऑपरेशन कराने के बाद भी वो आंसू की धारा है वो ठीक नहीं होती है, क्योंकि ये यहाँ से नहीं है, इट इज रिलेटेड इन द लीवर एंड गॉल ब्लाडर, नॉट इन आई। आंखों से आंसू आना जो समस्या बाहर नहीं ठीक हो रहा है, वो समस्या जो है वो लीवर से, गॉल ब्लाडर से है, ना कि आंख से। तो बाहर से दिख जरूर रहा है, लेकिन अगर उनका लीवर की दवाई दिया जाए तो ठीक होता है, इसी चीज। तो ये इन आवर बॉडी 12 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, एंड ऑल ऑर्गन्स टाइमिंग इज डिफरेंट डिफरेंट। सभी का टाइमिंग अलग अलग है, हमारा टाइमिंग जो है अलग अलग है। तो वो नेक्स्ट टाइम में फिर हम वो टाइमिंग का जो है वो फिर बताएंगे, या कुछ दूसरा चीज मैं इसको लेकर के आऊंगा। तो अगर यहाँ पर थोड़ी सी फिर से हम बात करते हैं फेफड़ा के, लंग का ठीक करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? एक तो जो है कि ऑक्सीजन पाउडर जो है उसको यूज करना है। हमारे पास जो है ऑक्सीजन पाउडर या गोमय भस्म, हाँ गोमय भस्म का पानी अगर पिए तो लंग का क्या भी प्रॉब्लम है ठीक है, खांसी, दमा, खांसी, हार्ट का है उसमें भी
हाँ आस्थमा है, उसमें भी ब्रोंकियल अस्थमा, उसमें भी टीबी, उसमें तो होम्योपैथ। और सेकेंड ऑक्सीजन की पूर्ति करना, यानी इंట్లో ఆవు దయ నుంచి దీపం वर्णिंచాలి। गाय के घी से नई नुंची दिया जलाना, घर में दिया जलाए तो सुबह शाम उसमें से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन निकलता है। इफ यू यूज 10 ग्राम ऑफ काउ घी पर डे, तो 10 ग्राम गाँव घी में 10 टन, कम से कम 1100 टन, हाँ 1100 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। 1100 टन जो है कि ऑक्सीजन पैदा होता है। तो अगर गाय का घी सब जगह उपलब्ध नहीं है तो हमारी पंचगव्य विधि द्वारा जो है कि गोमय से धूप बत्ती तैयार किया जाता है। वो धूप बत्ती इतना एक उंगली का रहता है, इतना बड़ा, उंगली जितना मोटा। उसमें गाय का घी गोबर से तैयार किया हुआ रहता है। वो धूप बत्ती अगर जलाते हैं जो रोगी हैं उनके घर में, उनके रूम में सुबह शाम, एक एक धूप बत्ती, तो उसमें से जो ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन की पूर्ति करेगा, तो वो रोगों को बहुत जल्दी ठीक करता है, कंट्रोल करता है। ये धूप बत्ती यूज करना है। और उनको गाय का घी खाएंगे तो वो जो है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा जाएगी। जलाना भी है, खाना भी है। आज का जो था यहीं तक, रोगों की चिकित्सा, पहचानने की चिकित्सा। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू आस्क विथ मी? मंजुला गारू, प्लीज। మళ్ళీ చెప్పండి, ఎమర్జెన్సీలో ఎమర్జెన్సీ టైం హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది తో ఏం చేయాలి? హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఎమర్జెన్సీలో ఈ చేతికి 20 టైం 20 టైం ఇలాగా గట్టిగా, ఆ, ఎవరికైనా హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇన్ ద ఎమర్జెన్సీ కేసులో వితౌట్ మెడిసిన్స్, ఈ ఫోల్డింగ్ ఉంది లోపల, ఈ ఫోల్డింగ్ ప్లేస్ లో 20 టైం ఇలా ఇలాగా చేయాలి। చేస్తే నర్వ్ బ్లోకేజ్ जो ఉంది కదా, హార్ట్ లో బ్లోకేజ్ ఉంది, బ్లడ్ లో బ్లోకేజ్ ఉంది, ఆ బ్లోకేజ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది రెండు చేతులు। 20 టైం 20 టైం बिलो 5 मिनट ही विल बी नॉर्मल, वो नॉर्मल हो जाएगा। सेकेंड, यदि फर्स्ट, सेकेंड, ये फिंगर, फिंगर प्रेस, इधर से नहीं, यहाँ से नहीं, इधर से ऊपर। एक, 1 2 3 4 5 6 7 అంటే 20 టైం ఇట్లా చేయాలి రెండు చేతులు। బిలో 5 మినిట్ ఎనీబడి, చాలా ఎమర్జెన్సీ కేస్ విల్ బి నార్మల్। పారాలైసిస్ వచ్చింది అప్పుడు ఆవు నెయ్యి తొందరకి ముక్కలు ఇయ్యాలి। ఆవు నెయ్యి ఎమర్జెన్సీలో ఆవు నెయ్యి లేకుండా పంచగవ్య నస్య ఔషధి, నో డ్రోప్ ఉంది పంచగవ్యలో తయారు, అది ఔషధి కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలా। తర్వాత మెడిసిన్ వాడాలి, డాక్టర్ దగ్గర పోవాలి ఎమర్జెన్సీ కేసులో। ఆవు నెయ్యి అది పాయింట్స్ కాదు,
పారాలైసిస్ వాళ్ళకే కంపల్సరీ పాయింట్స్ లో సరిపోదు, నెయ్యేలా. బర్మా థెరపీలో పాయింట్స్ ఉంది, ఏ సైడ్ వచ్చింది ఆ సైడ్ కి కొన్ని పాయింట్స్ లో ప్లేస్ చేయాలి. ఆ, అలా ఆ పాయింట్స్ ఉంది, ఈడ పాయింట్ ఉంది, ఈడ ఉంది, మిగతా ఇక్కడికి ఇక్కడ ఉంది, అది ఈడ ఉంది, మధ్యలో ఉంది, ఈ పక్కన ఉంది, ఇక్కడికే ఉంది, ఈడ ఉంది, ఈ పక్క ఉంది, ఏ సైడ్ ఉంది అలాగా. జనరల్లీ మర్మా కానీ బర్మా చేయొచ్చు కంపల్సరీ. పారాలైసిస్ వాళ్ళకే బర్మా థెరపీ చేయలేకుండా తొందరగా రిజల్ట్ రాదు, బట్ రిజల్ట్ పర్మనెంట్ ఉంది. ఇంకా మీరు నాసికా కంపల్సరీ ఇవ్వాలి, ఎక్కువ ప్రాబ్లం రాదు. నాసికా యూజ్ చేస్తే తర్వాత ఏదైనా ఆవు నెయ్యి యూజ్ చేసింది తొందరకి, అప్పుడే కంట్రోల్ అయిపోతుంది, పెద్ద ప్రాబ్లం రాదు. నాసికా పారాలైసిస్ వాళ్ళకి బ్రెయిన్ నుంచి ప్రాబ్లం, వాత దోశ, వాత దోశ, క్రానిక్ కాన్స్టిపేషన్, సరిగా డైజెస్ట్ రాదు వాళ్ళ మంది భోజనం. సో గ్యాస్ ప్రాబ్లం అయితే గ్యాస్ ప్రాబ్లం నుంచి వాత దోష, నొప్పి అయితే నొప్పి నుంచి బ్రెయిన్ లో కూడా బ్లాకేజ్ అయిపోతుంది. అందుకు బ్రెయిన్ నుంచి బ్లాకేజ్ అయింది, అప్పుడు పారాలైసిస్ స్ట్రోక్, లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్. సో ముక్కులో ఆవు నెయ్యి యూజ్ చేస్తే ఈ బ్రెయిన్ చాలా నార్మల్ గా అయిపోతాయి, తల్లి అయిపోతాయి, అన్ని బ్లాకేజ్ ఆపరేట్ అయిపోతాయి, బ్లాకేజ్ రాదు. అప్పుడు మర్మ చికిత్స, ఇంకా మెడిసిన్స్, పంచగవ్య మెడిసిన్స్, సెల్ మెడిసిన్స్ కంపల్సరీ ఉంది, బర్మా థెరపీ, మసాజ్ చేయాలా, అన్ని చేయాలా. ఎవరన్నా సపోజ్ ఎవరికే పారాలైసిస్ వచ్చింది, తొందరగా వచ్చినారా వారం రోజులు పూర్తిగా నార్మల్ అయిపోతుంది. 1 month అయింది, సో కొన్ని టైం పడుతుంది. ఎవరికైనా ఇంకా కోమాలో పోయినారా చాలా మంది, కోమాలో వ్యక్తి కూడా పేషెంట్ కూడా బాగా అయిపోతాయి తొందరకే, పంచగవ్య నర్సింగ్ రోగ్ నుంచి, హాస్పిటల్ రోగ్ నుంచి. 1 year old కేస్ కోమా వల్ల వారం రోజులు కోమా నుంచి బయట వచ్చినారా నర్సింగ్ రోగ్, అట్లా కేసు ఉంది. 1 year నుంచి కోమాలో హాస్పిటల్లో ఉన్నారా, వారం రోజులు 10 days లో కోమా నుంచి బయట వచ్చినారా, హాస్పిటల్ నుంచి ఇంట్లో వచ్చినారా. ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మిగతా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎనీబడి? याचिका हाँ होता है। ये जो भस्म है, गोमय भस्म जो है, और इसका कॉस्ट जो है 100 ग्राम का 300। ठीक है, भेज देता हूँ। तो 100 ग्राम का पैकेट रहता है 300 का। हाँ, और जितना पैकेट चाहिए उतना पैकेट में भेज देता हूँ। अच्छा, ठीक है। आप और अगर अस्थमा है तो उनको हमारे तरफ से गौमूत्र द्वारा बनाया हुआ आसव, आसव भी बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा,
गर्म पानी पर देने के बाद वो कम होता है और छाती भरा हुआ रहता है। छाती भरा हुआ रहता है ना अस्थमा में, तो उसको अमृत धारा डाल करके, गर्म पानी में अमृत धारा डाल के उसका वाष्प जो है उनको लेने के लिए बोले। अमृत धारा डाल करके गर्म पानी में और चादर ओढ़ के उसका वाष्प लेके, तो जो लंग में जो प्रॉब्लम है, जो ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो पाता है और जाम हो जाता है, यानी वो एक तरह से उसमें बैक्टीरिया बैठ जाता है, तो जैसे ही ये वाष्प लेंगे गर्म वाष्प, वो लंग का फ्री मूवमेंट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल तुरंत बढ़ जाएगा, तो आस्थमा का अटैक तुरंत खत्म होगा। अस्थमा कौन सा चलता है और कौन सा नहीं चलता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अस्थमा में कोल्ड चीजें एकदम बंद, फ्रिज का कोई भी आइटम नहीं। बनाना नहीं चलता, एप्पल चलता है। एप्पल चलता है, एप्पल चलता है, और आप अंगूर वगैरह भी खा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो अस्थमा जो है ना, इसमें गौमूत्र वाली जो औषधि बहुत कारगर होती है। आंवला हो गया, गौमूत्र आंवला हो गया, फिर गौमूत्र से बना हुआ जो भी है, तुलसी वगैरह। हाँ, तुलसी वाला गौमूत्र से बना हुआ उसका अर्क घनवटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको कंपलसरी लेना है। चिकनाई नहीं देना है, अस्थमा वाला को चिकनाई नहीं देना है। लेकिन पंच नहीं, घृत नहीं, पंचगव्य घृत दे सकते हैं, वो बहुत फायदा करेगा। उसके साथ साथ अगर देना चाहें तो आपको आयुर्वेद वाला बना हुआ च्यवनप्राश, जो 54 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट मिला करके च्यवनप्राश बनाया हुआ है, मैं भी बनाया हूँ, उसको दे सकते हैं। हाँ, च्यवनप्राश हीट बढ़ती है, तो इसलिए वैसी स्थिति में इनको थोड़ी सी मात्रा में, एक अभी गर्मी के दिनों में 12 रत्न चूर्ण हम हमारे द्वारा एक पंचगव्य द्वारा बनाया हुआ है, उसको दे दीजिए। आंसू कंपलसरी है, भस्म और आंसू 12 रत्न चूर्ण हम। और एक तो कृष्णा है कि समर समर सीजन चालू हो गया तो बच्चों को और बड़ों को क्या हो रहा है, पड़ जाने के कारण पेशेंट छोटा छोटा स्पॉट ऐसे कुछ बिना काट के पास स्पेलिंग होती है ना, हाँ, तो वैसे शरीर में हो जाती है तो मजेदार है उसका बनाना पति वाला हस्बैंड है ना वो भी है क्या चीज। वाला पति वाला नाकारी नारी नारी। हाँ, ननारी जूस भी दे सकते हैं, कूल करता है, ननारी भी अच्छा है। कोल्ड कोल्ड ड्रिंक से, कोल्ड ड्रिंक अच्छा नहीं है कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, बट ननारी अच्छा है। नारी मतलब क्या। ननारी बोले तो एक जड़ी बूटी होती है, उससे तैयार किया हुआ रहता है, जो कोल्ड करके देता है, वो फ्रिज में आइस डाल के। घर पे जैसे सटिया जीरा पानी वाले कर वो अपना मनो की पानी लेकर हाँ वो अपना हाँ, उसमें कर सकते हैं, लेकिन उपाय। दूसरा उपाय एक और है। अभी 1 मंथ, अभी से लेके पूरा चैत मास है, 25, होली होली शुरू हो रहा है 25 से, फागुन खत्म हो जाएगा, चैत मास आ जाएगा 25 के बाद से, 25 को होली है, तो अभी से लेकर के 25 मार्च टू 25 अप्रैल, 1 मंथ कंटिन्यू वाप आंखों का बना हुआ घनवटी ले सकते हैं। वो बहुत अच्छा, उसको लेंगे तब बॉडी को कूल करेगा। किसी भी तरह का नीम गोली, नीम की गोली, वाप आंखों से तैयार किया हुआ उसका टैबलेट रहता है, घनवटी रहता है, वो नीम आंखों वाला, वो अगर लेते हैं 1 महीना कंटिन्यू, तो इस समर सीजन में आपके बच्चे को, किसी को भी, छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा, किसी को भी ये जो पिंपल्स हो रहे हैं चेहरे पर, सर के अंदर दाना दाना घाव, फोड़ा फुंसी, हाँ, वो सब नहीं आएंगे, बॉडी हीट होने नहीं देगा।
और दूसरा मज्जिगा का सेवन, फिर सामक चूर्ण डाल कर करके मज्जिगा में लेते हैं, या तो केवल मज्जिगा लेते हैं काला नमक डाल करके, ब्लैक सॉल्ट डाल कर करके, टॉपर भी चलेगा। नहीं तो फिर सामक चूर्ण होती है हमारे द्वारा बनाई हुई, उसको अगर डाल करके लेते हैं टॉपर भी। यानी मज्जिगा कंपलसरी है, और वहाँ पर आंखों से बना हुआ टैबलेट या कैप्सूल जो हम लोग भी बनाते हैं, कैप्सूल फॉर्म में देंगे। आप चाहे अपना से बनाइए, हम लोग जो भी बनाते हैं पंचगव्य विधि से, गोमूत्र विधि द्वारा ही बनाते हैं टैबलेट। इसका सिर्फ नहीं, अर्क नहीं लेंगे, केवल घनवटी के रूप में लेंगे। 40 कैप्सूल 250 mg का कैप्सूल के रूप में। छोटा बच्चे को 250 कैप्सूल mg वाला कैप्सूल काफी रहेगा। और 30 डेज पर डे मॉर्निंग ले लेते हैं डेली 1 टाइम, तो पीठ प्रॉब्लम जो है, पीठ बढ़ा हुआ रहेगा, हीट बॉडी हीट कम हो जाएगा। उसके बाद खाने की जरूरत नहीं होगी। 1 ईयर तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, 1 मंथ खा लिए तो। वो भी उपलब्ध है, नीम का गोली भी उपलब्ध है, उससे भी चाहे तो आप मंगा सकते हैं। आप एड्रेस भेज दीजिएगा और हम भेज देंगे। ओके, नेक्स्ट वामसी। वामसी मंजुला, एनीबॉडी? नी प्रॉब्लम, मुकाल नुकी। हाँ, जनरली अकॉर्डिंग टू एलोपैथ, हड्डी घिस जाना जो बोला जाता है कि उसमें गैप आ गया है, घिस गया है, यानी उसके अंदर चिकनाई निकल गया है, ग्रीसिंग खत्म हो गया है। तो एलोपैथ में केवल नी ट्रांसप्लांट है, मेडिसिन नहीं है। इसमें क्या करना है, सो देखिए। हमारा बॉडी जो है वो एक मशीन है। डीजल मशीन या कोई भी बाइक मशीन, बाइक है, उसमें जहां जहां ज्वाइंट्स होते हैं, फ्रीव्हील होते हैं, ग्रीस, वहां पर ग्रीस डालते हैं कि नहीं डालते हैं? ग्रीस डाला जाता है ना चिकना होने के लिए। तो हमारे भी जो बोन्स है, वहां ज्वाइंट्स है, नी ज्वाइंट्स, काल की, वहां पर वहां पर जो जैसे ये अंगुली है या ये बैंड हो रहा है, ये ज्वाइंट्स है। तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह का पेन आयल, पेन करने वाली जो पेन रिलीफ आयल जो होते हैं, उसको लगाएंगे तो क्या होता है, वो अंदर तक जाता है। आयल लगाने से ऊपर नहीं रहता, अंदर तक जाता है। यानी जो आप कहीं भी दर्द है वहां पर आयल से अगर मसाज करते हैं, तो मसाज करने से क्या होगा, वो आयल जो है उसके शरीर, पसीना कहाँ से आता है पहले नंबर ये बताइए। चमाटा होता ना, अंदर से आता ना पसीना गर्मी में। तो बाहर से तेल डाले तो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो आयल, पेन रिलीफ आयल अगर मैं डाल के उसको यहाँ पर मसाज करता हूँ नीक में, यहाँ पर भी पेन है, तो वो क्या होगा, धीरे 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 अंदर जाते 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 वहां फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। हम्म। एक विधि तो आयल हो गया, और ज्यादा पेन है तो उसको सेकाई करना गर्म पानी से। ब्लड सर्कुलेशन जल्दी से चालू हो जाता है, गर्म पानी हॉट वाटर से अगर सेकाई करते हैं तो वो तुरंत सॉफ्ट हो जाता है, वहां पर का जो स्किन है, मांस है, वो सॉफ्ट हो जाता है, हीट होकर करके ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है, तो पेन जो है कि नहीं आएगा। अब जो कार्टिलेज चला गया, गैप आ गया, वहां जो है कि रफनेस हो गया है ज्वाइंट पेन को, तो उसको करने के लिए दूसरा जो है कि औषधि चाहिए, मेडिसिन। अगर वो मेडिसिन की बात करें तो हमारा मेडिसिन एलोपैथ में मेडिसिन बोला जाता है, आयुर्वेद में औषधि बोली जाती
तो जो गौमूत्र द्वारा बनी हुई औषधियां हैं जो हमारे पास में है, उसके द्वारा से 10 ईयर ओल्ड केस भी, जिनको ऑपरेशन करने की बारी थी, डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया, मात्र 3 मंथ में ही। 3 to 4 मंथ, पुराना से पुराना केस 3 to 4 मंथ में इतना फ्लेक्सिबल, इतना सॉफ्ट, इतना आराम से आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके अंदर जो एक तो ऑयल लगा करके, और दूसरा जो है कि खा करके मेडिसिन के रूप में, औषधि के रूप में आर्क घनवटी दे कर करके जो है कि फ्लेक्सिबिलिटी बना देना, उसके अंदर चिकनाई ला देना, जो कार्टिलेज खराब हो गया वो ठीक हो जाता, बहुत ही आसानी से ठीक होता है। और टेस्ट कराने की जहां तक बात है तो अलग है। आपको अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो टेस्ट की क्या जरूरत। हाँ, उसके अंदर और जो परेशानियां होती है, कारण को समझने के लिए हमें टंग को देखना पड़ता है। ये टंग देखे तो हमें मालूम चल जाता है कि उसके अंदर परेशानी कहाँ से है, क्यों पेन ठीक नहीं हो रहा है। तो ये टंग देख करके अल्टरनेट मेडिसिन को दे करके, औषधि को दे के उनको ठीक किया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब बने। डॉक्टर से मैं रिचुअल को आपका नंबर पावन कर बात जी जी। किया और डॉक्टर से आपका अच्छा सा नॉलेज दिया, ताकि पान के बारे में आपने अच्छे तरीके से समझाया, बहुत अच्छा लगा। और अब बढ़िया चुपचाप रहे तो एक, हाँ, ज्वाइंट्स पेन में एक चीज और है, किसी का भी ज्वाइंट्स पेन है ना, तो जो एक मैं चीज बोला कि आपको ऑयल लगाना है बाहर से, फ्रिज में भी चिकनाई है ना, गाय का घी में, गा, गाय का घी में भी तो चिकनाई है ना, गाय का घी में चिकनाई नहीं है। मेरे गाय पे है, गाय की होनी पर गाय ये पे ये गाय का घी को खाना जरूरी है, ना खाना तो ऑयल, ऑयल से मसाज करना। गाय पे गाय का घी और हल्दी, अगर गाय के दूध में एक पाव पाव लीटर गाय का दूध रात में, खाना खाने के 1 घंटा बाद या 9 बजे रात तक सोने के पहले, हाँ लास्ट में सोने के पहले, गर्म दूध में क्या करना है, एक छोटी स्पून से हल्दी पाउडर, ज्यादा भी नहीं लेना, छोटी स्पून से आधा चम्मच या 2 to 3 ग्राम, मैक्सिमम 2 ग्राम हल्दी पाउडर डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देना। और उसमें 1 स्पून गाय का घी, भैंस का नहीं, रोग हो गया तो भैंस का घी नहीं चलेगा, गाय का घी चलेगा। जनरली खाने के लिए भैंस का घी भी अच्छा है, कोई खराब नहीं है, पैकेट वाला से तो अच्छा है, जो ब्रांडेड कंपनियों के घी बिक रही है मार्केट में गाय के घी के नाम पर। लेकिन अगर रोग हो गया तो ज्वाइंट्स पेन में गाय का घी जरूरी है। तो उस घी को दूध में डाल करके और मिक्स किया जाता है, चम्मच से स्पून से कभी नहीं मिक्स होगा, ऊपर ही रह जाता है। यानी एक खाली गिलास लेना है, 1 गिलास दूध लेना है, तो एक दूध वाले गिलास से खाली गिलास में पलटी मारेंगे ऊपर से, फिर और इससे खाली गिलास में ऐसा 10-20 टाइम में करने से क्या होगा कि घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। कभी भी गाय के दूध में या भैंस के दूध में, गाय का दूध नहीं तो भैंस का दूध भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, हाँ, लेकिन पानी मिला हुआ दूध होना चाहिए, पूरे प्योर ओरिजिनल दूध नहीं, आधा दूध आधा पानी। तब जा करके, अगर गाय का घी, दूध भैंस का भी है तो चलेगा, लेकिन घी रहना चाहिए गाय का, तब जा कर करके, पैकेट वाला दूध नहीं। और पिएंगे, वो भी दूध पीने का तरीका क्या है, खड़ा होकर पीना है, बैठ के नहीं, पानी बैठ के पीना है, और दूध जो है खड़ा होकर पीना है। तो आप अगर 11 डेज तक कंटिन्यू हल्दी पाउडर और गाय का घी दूध में डाल करके पीते हैं,
तो आपको 30 to 40% रिलैक्स मिल जाता है केवल हल्दी वाला दूध पीने से, गाय का घी वाला दूध इतना पावरफुल है। यानी अंदर से जाके चिकनाई पैदा करना, पूरे बॉडी में जहां भी ज्वाइंट्स है, जहां भी दर्द हो रहा है, चाहे बैक पेन हो रहा हो या ज्वाइंट्स पेन हो रहा हो, नी पेन हो रहा हो, या अंगूठे पैर के अंगूठे में हाथ है या पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा हो, एड़ी में हिल पेन हो रहा हो, वैसी स्थिति में भी आप गाय के दूध के साथ में गाय का घी आप डाल करके पीते हैं, हल्दी पाउडर डाल कर पीते हैं, तो बॉडी का पेन या मस्कुलर पेन, ऐसा भी पेन है या क्रेक आते हैं बॉडी में, क्रेक्स आ रहे हैं बार बार, अब नर्व पे नर्व चढ़ जाता है, हाथ में पैरों पे मोच आ जाते हैं, तो अगर उसको डाल के पीते हैं तो प्रॉब्लम आपको परमानेंट ठीक होता है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने आप में गाय का घी अपने आप में मेडिसिन है, गाय का दूध ये मेडिसिन है। मेडिसिन बोले तो ये पंचगव्य फूड, भोजन जिसको कोई भी पिएगा तो कोई नुकसान नहीं है। और हल्दी, हल्दी का गुण जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, इतना गुण हल्दी में है, टर्मरिक पाउडर में है। अगर आपका नी में स्वेलिंग है, जहाँ नी है पैर का नी, वहां पर अगर स्वेलिंग है, सूजा हुआ है, वहां पर వచ్చింది నీలో, हाँ नुक्सी उंदा वहां पर उंदी, अब वो हल्दी वाला दूध पिए तो वहां पर जो है वो स्वेलिंग हट जाता है, पूरी तरह से कम जाता है। एक मसाज कीजिए, हल्दी वाला घी वाला दूध पीजिए, देखिए खत्म हो जाता है। और फिर उसके साथ साथ अगर लगाना घी पीना है, लगाने के लिए तेल, जनरली कोई भी तेल, दर्द वाली तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे हम लोग जो अपना देते हैं, अपना बनाते हैं वो वाला तेल देते हैं। फिर तक तेल या पेन रिलीफ ऑयल, कुछ भी, टैबलेट नहीं, टैबलेट से ठीक नहीं होती है, ऑयल यूज करना। ओके। हाँ सर, वंशी सर, साउंड రావట్లేదు మీది, పండ్ల నుంచి బ్లడ్ టీత్ లో, అంటే పైరియా, రోగం పేరు పైరియా, టీత్ లో రక్తం వస్తుంది, పండ్లో రక్తం వస్తుందా అంటే పైరియా ఉంది। పై- పైరియా, పైరియా రక్తం వస్తుంది, పండ్ల నుంచి రక్తం, తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో పేరు పైరియా, అంటే టీత్ లో పండ్ల నుంచి రక్తం అవుతుంది। రక్తం ఎందుకు వస్తుంది అంటే చిన్న చిన్న పురుగు వస్తుంది ఫస్ట్, పురుగు అయింది, పైరియా అంటే పురుగు, ఆ పురుగు ఆహా టీత్ నుంచి, ఆ, तो सपोज याद हो ना, प्रॉब्लम टीथ में एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। हाँ हाँ, फोटो बैकग्राउंड बनाया ना कैमरा, नहीं स्क्रीन शेयर की हाँ मुझे नहीं देखनी थी। हाँ, మీరు ఆ స్క్రీన్ ఒక ఫోటో పంపిస్తున్నారా గ్రూప్ లో, ఆ స్క్రీన్ ఒకసారి చూడండి, స్క్రీన్ షేర్ చేశాను ఒకసారి చూడండి మీరు అందరూ వాట్సాప్ లో, వాట్సాప్ లో కాదు ఇక్కడే 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 అదే ఇది
हाँ सर्वाइकल शोल्डर पेन, हाँ करेक्ट है। तो सपोज रक्तम వస్తుందా मैडम ऑफिसर, हाँ టీత్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది, రక్తం వస్తుంది కానీ గ్యాప్ ఎక్కువ అయిందా, బ్రష్ చేయకూడదు. బ్రష్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రష్ బంద్ చేయండి. ఆ, నా దగ్గర ఒకటి బ్లాక్ టూత్ బంద్ అని ఉంది, ఇది ఇది వాడితే పూర్తిగా పోతాయి, మీ ప్రాబ్లం పూర్తిగా పోతాయి. బట్ ఇంకా చూడండి ఫోటోలో పండ్లలో బ్లాక్ బ్లాక్ వచ్చింది, అప్పుడు టీత్ డెంటిస్ట్ దగ్గర పోయి క్లీనింగ్ చేయాలి. టీత్ క్లీనింగ్ చేయాలి. ఒకసారి టీత్ క్లీనింగ్ అయింది, టీత్ లో పైన ఆ స్టోన్ लागा जाम అయిపోతుంది, मसूड़ा बाहर नहीं आता हो उसको, इसलिए एक बार जाकर टीथ के डॉक्टर से उसको क्लीन करा लेना, पूरा दांत को क्लीन करा लेना. तो అది అలాగా లేదు, ఉత్త రక్తం వస్తుందా, సో నా టూత్ బంజన్ ఉంది అది వాడండి. రైట్ రైట్ మిడిల్ వన్, బాగా కరెక్ట్. ఇదేనా? కంపల్సరీ టూత్ లేకుండా నా నా టూత్ బంజన్ యూజ్ చేయండి, లేకుండా ఆవు మూత్రం, తాజా ఆవు మూత్రం నుంచి కుల్లా చేయండి. పళ్ళు పుక్కిలించుకోవాలి. ఆ, ఆ, అది ఉంది. ఆ, గౌ- గౌ- గౌమూత్రం నుంచి కుల్లా గార్గిల్ చేస్తే తొందరకే బాగా అవుతాయి. ఏం లేదు, డైరెక్ట్ ఉత్తా వాటర్ కలిపేక లేదు, డైరెక్ట్ గా ఒరిజినల్ ప్యూర్ ఒరిజినల్ ఆర్క్ వద్దు. ఉమ్, ఉమ్. वाइट वाइट हेयर, वाइट हेयर
सर्वाइकल प्रॉब्लम का టంగ్ ఫోటో పంపించండి. ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంది, కన్సల్ట్ చేసి మా మెడిసిన్ వాడాల. జనరల్ గా ఒక 2 మెడిసిన్లు అట్లా సరిపోదు, ఒక కోర్స్ వాడాల. ఇంకా సర్వైకల్ ప్రాబ్లం ఉంది, నా దగ్గర ఖచ్చితంగా రావాలా. ఉత్త మెడిసిన్ లో బాగా రాదు, నా దగ్గర వచ్చిన తర్వాత నాభి చూడాలా, నాభి సెట్ చేయాలా, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది మసాజ్ చేయాలా, అది చేయాలా. థెరపీ, మసాజ్ థెరపీ, ఆ నాభి సెట్ చేయాలా. తర్వాత ఉత్త మెడిసిన్ లో పూర్తిగా బాగా రాదు. కాలు నొప్పికి మెడిసిన్ నుంచి బాగా అవుతాయి పూర్తిగా, సర్వైకల్ వాళ్ళకే రాదు. నా దగ్గర వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా తెలుస్తాయి మీ రోగం ఎట్లా ఉంది. అన్ని ఆన్లైన్ లో సరిపోదు. నువ్వు కాలు నొప్పికే నా దగ్గర వచ్చే అవసరం లేదు, బట్ సర్వైకల్ వాళ్ళకే ఖచ్చితంగా రావాలా. పార్లైసిస్ వల్ల సర్వైకల్ వాళ్ళకే రావాలా. మాన్యువల్లీ చేయాలి కదా, మాన్యువల్లీ చేయాలా. నా దగ్గర రాలేకుండా ఎట్లా చేస్తాను. ఓకే ఓకే. వంశీ సార్, మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఉన్నారా? మంచిది సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ వచ్చినందుకు. అందరికీ నమస్కారం, ధన్యవాదాలు. జయ గోమాత. జయ గోమాత అందరికీ. మేడం గ్రూప్ లో ఉన్నారా మధు గారు? మంజుల మేడం, మీరు ఉన్నారా గ్రూప్ లో? సరే సరే, అదేమైనా డౌట్స్ ఉంటే గ్రూప్ లోనే అడిగేసేయండి, లేకుంటే డౌట్ ఉంది గ్రూప్ లో పంపించండి, లేకుంటే పర్సనల్ గా మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే. అట్లనే ఇంకొక విషయం చెప్పాలి, ఇంకొక అప్డేట్ చెప్పాలి. ఈ వీడియో వచ్చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను అనమాట యూట్యూబ్ లో, సరేనా? ఆల్రెడీ టూ వెబినార్స్ మనం కండక్ట్ చేసి. ఏం సార్? రైట్ సార్, రైట్ సార్. యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తే వస్తాను, ఇంకా అప్లోడ్ చేయలేదు. చెక్ చేసి ఒకసారి అప్లోడ్ చేస్తాను. అప్లోడ్ చేసి మీకు టుమారో కానీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో కానీ అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకే మేడం.